Yes, good morning. Good morning. Yes, where are the other students? कहाँ है बाकी बच्चे? अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैम मे भी करेंगे अभी. Okay, so let's get started. What we were doing the 2D transformations. Okay, so in today's class, we will be understanding about composite transformation. Composite transformation क्या होती है and homogeneous coordinates. ठीक है. So in order to start with, we are just doing a quick revision of what we have studied. Am I audible to everyone? सबको मेरी आवाज? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So this document is being shared to you. Can you all see that this Word document सबको share है? Yes ma'am. चलो. So 2D transformation हमने start किया था. I was telling you that what is 2D transformation? It is like the process of changing something into a geometrical object. ठीक है. Computer graphics में if you want to change something, like if we want to resize, we want to scale it up, we want to scale it down, or we want to rotate it, we want to translate it. So if you want to change the position or the size, or we can say we want to play with the axis, x-axis, y-axis, or we want to reflect. So all this comes under transformation. So 2D transformation, we are saying it as 2D transformation. Why? Because we are working with only x-axis and y-axis. Okay. Now, in 2D transformation, we have studied various kinds of transformation. है ना? We have studied about translation. What is translation? Who will tell me? What is translation? मैम लैंग्वेज ट्रांसलेट करना. हाँ जी, please repeat again. Yes, दीपक बोलो. मैम जैसे कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. बेटा मैं 2D ट्रांसलेशन पूछ रही हूँ. ओके ओके. 2D ट्रांसलेशन क्या होता है? मैम बेसिकली इट यूज टू रिपोजिशन करने के लिए यूज होता है मैम. ये हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे लाइक पाथ था ना हमारा, उस पे हम रिपोजिशनिंग कर रहे थे. Yes. So लाइक एक कोऑर्डिनेट से हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जा रहे थे. Yes. So we have हमने पहले एक पॉइंट के साथ समझा. Then we have considered a line. We have also understand about a geometrical object. It may be a triangle or a square. So अगर आप एक पॉइंट को दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो that is called translation. And if you can work it with a point, you can work it with any of the geometrical figure. Let's suppose ये आपके पास एक point है. Now just see this. This is the figure. आपने देखो, this is the figure. You have this point x comma y, जिसके coordinate है x old comma y old. This is a point O. You want to translate it to a new position. This. Yes, those who have not studied it earlier, please, I am repeating the whole thing again. यहाँ पर जल्दी से आप लोग देख लो. We have one point x comma y जिसकी coordinate है x old y old. We are moving this point to this point. This process is called translation. Translation is a process of moving one point to another point. It could be a point, it could be an object also. ठीक है, जरूरी नहीं है एक point हो, कोई object भी हो सकता है. The object is geometrical object.
ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एनी ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर, एनीथिंग दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट है, इसमें को अगर यहाँ मूव करना है दैट मीन्स इस पॉइंट में आपको ये वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट के लिए ये वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड tx, दैट इज द ट्रांसलेशन वैल्यू in x-axis, and this is ty, that is a translation value in y-axis. So how you can represent the entire thing into equation? Equation में कैसे represent करोगे? Like this. ये देखो, यहाँ पर आपने लिखा x new is equals to x old plus tx and y new is equals to y old plus ty. And this thing you can represent in your coordinate system. In your translation matrix representation में कैसे कर सकते हो, x new y new is equals to x old y old plus, ध्यान देना this is a plus sign, this is not a multiplication sign. आगे आपने बहुत सारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन देखा है, बट ट्रांसलेशन में हमेशा प्लस होता है, प्लस tx ty. दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर Okay, am I audible? Yes, class, am I audible? Yes, class. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, so we were doing the 2D translation. This is the translation equation. And if we want to represent into homogeneous coordinate, देखो homogeneous coordinates क्या होते हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं आपको homogeneous coordinates के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. Just look at here. Now, this is homogeneous coordinates. आपके क्वेश्चन में ना जब आप prepare करोगे तो you need to prepare one topic for homogeneous coordinates also. Short question में 2 नंबर में 3 नंबर में they will ask you what are homogeneous coordinates. तो homogeneous coordinates की requirement कब पड़ी? देखो, जब आप when you are working with multiple transformations, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट भी कर रहे हो, फिर रोटेट कर रहे हो, फिर स्केल कर रहे हो, समझ रहे हो? ये देखो, जैसे मैं लेट मी शो यू वन डायग्राम, जस्ट वेट, ओके, जस्ट सी दिस फिगर, एक मिनट, ये फिगर देखो, कैन यू ऑल सी दिस फिगर? ये डायग्राम सबको दिख रहा है? ये ट्राइंगल वाला डायग्राम? नो मैम. नो, ये मैंने स्क्रीन तो शेयर कर दी है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये स्लाइड? Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, दिस इज अ ट्राइंगल, this is a triangle, and now you are what you are doing, you are doing the translation. That means you are moving with respect to a point. This ये जो point है ना xf, yf, इस point को आप origin पे लेके आ रहे हो. That means you are doing a translation. उसके बाद आप क्या कर रहे हो? स्केलिंग कर रहे हो. स्केल मैंने बताया था ना आपको कि यू आर डूइंग द कंप्रेशन कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, एंड देन यू आर ट्रांसलेटिंग इट बैक. तो आपने क्या किया? पहले एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, देन स्केल किया, देन फिर आपने उसको रीपोजिशन किया. दैट मीन्स आपने उसको फिर से उसकी पोजीशन पे वापस भेज दिया. अब जब आपको ऐसी मैट्रिक्स के साथ काम करना होता है ना जिसमें मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्या कर रहे हो आप? ट्रांसलेशन भी कर रहे हो, स्केलिंग भी कर रहे हो, फिर रीट्रांसलेशन कर रहे हो, समटाइम्स यू हैव टू डू द रोटेशन ऑल्सो. उस केस में यू कैन नॉट वर्क विथ 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स के साथ आप काम नहीं कर सकते. तब उसके लिए आपको क्या करना होता है? अपने मैट्रिक्स को चेंज करना होता है 3x3 फॉर्म में. ठीक है, सो उस चीज में ये जो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है कि
अगर आप इफ यू आर डूइंग मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपने अभी ट्रांसलेशन किया, फिर उसके बाद आपने उसमें रोटेशन कर दिया या आपने स्केलिंग कर दी, ठीक है, तो ये जो चीजें आप कर रहे हो इसको बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नाउ हाउ टू वर्क विद होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, नाउ जस्ट सी हियर, टू कंबाइन द थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ऊपर एग्जांपल में आपको थ्री ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है, वन इज ट्रांसलेशन, वन इज रोटेशन एंड अगेन इज ट्रांसलेशन, ठीक है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ टू डायमेंशनल कंपोजिट पोजिशंस आप थ्री कोऑर्डिनेट्स लेते हो, और तीसरे कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय अ डमी वैल्यू विच वी कॉल्ड एज 1, क्योंकि आपको पता है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंट यूज करते हो। फॉर टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन चूज होमोजीनियस पैरामीटर to any non-zero value. So for convenience, we take it as 1. Each two-dimensional position, जो x, y है, अगर उसको हमें homogeneous coordinate में represent करना है, then we can represent it like x, y, 1. You got it, class? Clear हो रहा है homogeneous coordinates क्या होते हैं? See, अभी Yes, ma'am. अभी हमने नॉर्मल पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। वी हैव डन द रोटेशन, वी हैव डन रिफ्लेक्शन, वी हैव डन स्केलिंग, वी हैव डन ट्रांसलेशन, बट sometimes there is a situation when we want to do more than one transformation to a single object। जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया, उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ट्राइंगल था, उसको हमने ट्रांसलेट किया, देन हमने उसको स्केल किया, फिर हमने उसको रीट्रांसलेट किया। नाउ तीन बार हमने काम किया। अब उसके लिए वी नीड टू डू द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक कंपोजिट, मतलब पहले ट्रांसलेशन का स्केलिंग के साथ फिर रीट्रांसलेशन के साथ एक कंपोजिट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू डू दिस हम करते क्या है, हम 2x2 मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं 3x3 रिप्रेजेंटेशन में। उसके लिए हम करते क्या है, जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय विद एनी नॉन जीरो वैल्यू विच वी कॉल्ड एज 1। तो हम x, y को रिप्लेस कर रहे हैं x, y, 1। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी हमने मैट्रिक्सेस पढ़े हैं, ये देखो, ट्रांसलेशन का हमने पढ़ा था। ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स ये वाला देखो, मैंने आपको ये वाला पढ़ाया है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स अगर हम 3x3 में ये पढ़ेंगे तो इट इज 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है, और यहाँ पर हमने tx और ty लिख दिया, दैट इज 1 0 0 1, यहाँ पे tx ty। स्केलिंग का हमने पढ़ा था, स्केलिंग का हमने क्या किया था, sx 0 0 sy, और अगर हमें इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखना है तो इट विल बी 0 0 0 0 1। पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, और डायमेंशनल में यहाँ पर sx में। आपको ये पूरे सारे मैट्रिक्स टिप्स पे याद होने चाहिए सबको, और ये याद आपको तभी होंगे व्हेन यू डू द प्रैक्टिस। रट्टा नहीं मारना है, आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे लिखे हुए हैं। एक चीज आई वांट टू टेल यू कि जो मैंने आपको रोटेशन पढ़ाया है, ठीक है, एंड आई हैव done this rotation from the foreign authors book called Rogers and Foley, वहीं से पढ़ाया है। तो वहां पर जो मैंने क्लॉकवाइज, ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन, जो नेगेटिव साइन आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव डन, और जो अगर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स ये है, और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज का मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको नोट्स में भी दिया है तो वो ये उल्टा दिया है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से सॉल्व करोगे। अलग अलग बुक में, अलग अलग साइट्स में रोटेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग रो मेथड यूज करते हैं, कुछ लोग कॉलम मेथड यूज करते हैं, जिसकी वजह से साइन में डिफरेंस आता है। दिस इज द कॉलम नोटेशन। यहाँ पर ये वाला मैंने आपको कराया है, ये वाला अभी मैंने आपको नहीं कराया है। तो आप जो रिप्रेजेंटेशन मैंने कराई है वो ही करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
ट्रांसलेशन के लिए ये है, स्केलिंग के लिए दिस इज फाइन, रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक मूव करती है तो उसमें आपका माइनस साइन यहाँ पर आता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। रिफ्लेक्शन अगेंस्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारा सेम है, ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन कराया था फ्राइडे को, याद है रिफ्लेक्शन हमने फ्राइडे को पढ़ा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। यस मैम। ठीक है, तो ये सारा आई हैव डन दिस थिंग टू यू। मैं अभी आपको बता रही थी ट्रांसलेशन हमने देखा था, हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स देख लिया है एक बार। आई वाज जस्ट डूइंग द रिवीजन सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन डू विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसके अंदर मोस्टली सारे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा इकट्ठा किया हुआ है। तो ट्रांसलेशन हम रिवाइज कर रहे थे, ट्रांसलेशन हमने कर लिया था, देन आफ्टर ट्रांसलेशन मैंने इसका न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था कि आपके पास एक पॉइंट है 1,4, उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो बाय दिस वैल्यू, तो न्यू पॉइंट आ गया 6,5। सबको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इक्वेशन, इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये पॉइंट था 1,4, यू हैव टू मूव इट टू अ न्यू पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड समथिंग, तो ऐड के लिए आपको tx और ty क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को पुट करना है और उसको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यहाँ पर ये वाला मैंने आपको एग्जांपल पहले भी कराया था कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके पॉइंट्स ये है, तो इसको कैसे लिखोगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में? यस क्लास, कैन यू राइट दिस इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? 0, यस मैम। इसको 0,3, 3,3/3, 3/0, 0/0, 3/0 एंड 0/0, ये तो आपका आ गया वो स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या था, अप्लाई द ट्रांसलेशन विद डिस्टेंस 1 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड 1 टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो यहाँ पर tx और ty जो गिवन है वो आपको ये गिवन है। आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, ये tx आपका है 1, यहाँ पे लिख लो 1, और ty भी आपका 1 है, तो tx/ty आप इसको उस फॉर्म में लिखोगे जैसे या यहाँ पे 1 मिनट मुझे दो, यहाँ पर देखो tx और यहाँ पे ty, इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लोगे, प्लस ये आपका वो था, यहाँ पर क्या आ जाएगा a b c d, तो ये a b c d के कोऑर्डिनेट्स आप पुट करोगे, वो है ये वाले। तो इसको जब आप इसकी वैल्यू में लिखोगे तो न्यू आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, नए पॉइंट्स क्या आएंगे, न्यू पॉइंट्स विल बी 1/4, इट इज 4/4, हर एक वैल्यू ऑफ tx and ty will be added with every coordinate, 4/1 and 1/1। ये सबको क्लियर है कैसे आया है, न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे आ गए, tx ty, ये सबको क्लियर हो गया है क्लास? आपने 1 को और इस 1 को tx को हर एक x के साथ ऐड किया है एंड ty को हर एक y के साथ ऐड किया है इन ऑर्डर टू गेट द न्यू पॉइंट्स। यहाँ पे सोल्यूशन में भी देखोगे आप तो इन्होंने 1/1 करके दिया है कि जैसे 0,3 को ऐड किया 1 से इक्वेशन में ऐड किया, आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो। द बेटर वे इज कि आप इसको जैसे जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देखो, तो हमारे पास वही पॉइंट आ गए 1,4, 4,4, 4,1 एंड 1,1। सबको क्लियर है ये वाला? यस मैम। मनीष, दीपक,
Prashant, is it clear to Yes, you? ma'am. सबको Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's move ahead. Translation के बाद हमने देखा था स्केलिंग. स्केलिंग मैंने आपको बताया था कि स्केलिंग क्या होती है. स्केलिंग इज बेसिकली रीसाइजिंग. आप यू कैन डू द स्केलिंग, मतलब आप स्केल अप भी कर सकते हो एंड यू कैन डू स्केल डाउन आल्सो. दैट मींस यू कैन मॉडिफाई द शेप बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज और यू कैन आल्सो कंप्रेस इट्स साइज. तो उसके लिए यू रिक्वायर द स्केलिंग फैक्टर. अब स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी ट्राइंगल है. इफ यू वांट टू एनलार्ज द ट्राइंगल बाय ट्वाइस टू इट्स साइज, तो आपको करना क्या होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सिमिलरली इफ यू वांट टू कंप्रेस द ट्राइंगल टू half to its size, that means what you have to do, you have to decompress it. मतलब कि उसको हमने नेगेटिव वैल्यू से लेस देन द हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको ऐड करने की बजाय व्हाट यू वांट टू डू, यू नीड टू डू द मल्टीप्लिकेशन. अब अगर स्केलिंग फैक्टर x, sx एंड sy दोनों आपके 1 ग्रेटर देन 1 होते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग द अप स्केलिंग. आप उसको एनलार्ज कर रहे हो. ठीक है. अगर वो लेस देन 1 है, दैट मीन्स यू आर डूइंग द रिडक्शन. आप ऑब्जेक्ट साइज को रिड्यूस कर रहे हो. यू आर डूइंग द कंप्रेशन. ठीक है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग भी 2 तरीके की होती है कि अगर आपके sx और sy दोनों इक्वल्स टू, दोनों बराबर है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केलिंग. मतलब आप दोनों को इक्वली बढ़ा रहे हो x और y डायरेक्शन में. अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग. ठीक है, ये तो बेसिक है. तो यहाँ पर x new is equals to x old multiply sx and y new is equals to y old multiply sy. Now if you want to write this into matrix representation, तो यहाँ पर देखो, this is a matrix representation, है ना. ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है. और अगर आपको यहीं पे इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में. यहाँ पे लिख दो कि जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पर 0 0. तो ये आपका होमोजेनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन हो गया. जस्ट लुक एट हियर दिस. सी, यहाँ पर हमने एक डमी वेरिएबल ऐड किया 1. दिस इज आल्सो द डमी वेरिएबल x new y new 1. और दिस इज माय होमोजेनियस मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग. sx 0 0 0 sy 0 0 0 1. Yes class, is it clear to you all? होमोजेनियस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कब हमें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है. प्लीज ये क्वेश्चन याद रखना है आपने, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स. व्हाट आर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स. तो इसका जो आंसर है दैट इज अवेलेबल इन द नोट्स. और आपको पता भी होना चाहिए कि whenever we are doing the composite transformation, जब हम एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं, स्केलिंग भी कर रहे हैं, देन इन दैट केस 2x2 matrix are not easy to work with. We replace them into 3x3 matrix by adding a dummy variable. So हर x, y को हमने रिप्लेस कर दिया x, y and 1 से. एंड एवरी मैट्रिक्स, आपको स्केलिंग का मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन का पता होना चाहिए, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग यू नीड टू रिप्रेजेंट इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ये स्केलिंग है. स्केलिंग सबको क्लियर हो गया है. स्केलिंग पे अगर एक बेसिक एग्जांपल देखो, तो आपके पास ये पॉइंट है 0,3 3,3 3,0 0 0. ये वही सेम ऑब्जेक्ट है. अब आपको स्केल करना है किसमें, sx2 और sy3 में. ये देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर. ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे, ये तो आपका स्केलिंग मैट्रिक्स है. यस क्लास, दिस इज योर स्केलिंग मैट्रिक्स. नाउ ऐड दिस, मल्टीप्लाई करना है आपको. देखो यहाँ पर ऐड नहीं करना. स्केलिंग में हम क्या करते हैं, वी डू द मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर देखो, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आप पहले t लिखोगे. t मतलब first your transformation matrix, which is this. You will write this, then multiply this. क्या आंसर आएगा? Yes class, just do the multiplication.
मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला था कि एक बार अगर किसी जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो एक बार रिवाइज कर लो। यूट्यूब पे देयर आर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल। यहाँ पर मैंने फॉर योर एग्जांपल आई हैव गिवन दिस स्लाइड। यहाँ पे देखो 1, ये देखो, कैन यू ऑल सी? ये स्लाइड सबको शेयर हो गई है? यस क्लास? यस मैम। यहाँ पे देखो देयर इज अ मैट्रिक्स ए एंड देयर इज अ मैट्रिक्स बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आपको पता है, रो को हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4। तो इसको 6 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 1। तो इन तीनों का एडिशन यहाँ पर आ जाएगा। देखो एक चीज का ध्यान रखो, ये कितना, ये कौन सा, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका। ये 2 क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। तो ये है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका किस फॉर्म में आएगा? हाँ बोलो। मैम वी हैड 3 rows ना, तो 3 into 3 rows, 2 rows to, हाँ 2 into 3 then 2 column, ठीक है मैम। ठीक है, तो आपका ऑर्डर आपको पता है ना, ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम होता है। तो रो कितनी है? फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो है, कॉलम कितने हैं? 3, तो 2 into 3। सेकेंड वाले मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, तो 3 into 2। जब आप इसको देखोगे 2 क्रॉस 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 3 से, तो 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा कॉलम का, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया है वो आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आया है, ठीक है। द नंबर ऑफ रो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे यू हैव टू मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो। तो जो मल्टीप्लिकेशन की जो कंपैटिबिलिटी होती है, दैट इज ऑलवेज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो 3 3 इक्वल है, तो ये 3 3 आपस में कटेगा और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 क्रॉस 2, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये आपकी कंपैटिबिलिटी आप चेक करते हो जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो। यस क्लास, ये क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाहती थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? हाँ जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सबको आना चाहिए, बिकॉज जब भी आप 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आप अभी कंपोजिट पढ़ोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो आपको यू नीड टू बी वेरी क्विक विथ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपकी मेमोरी के लिए बता रही हूँ कि आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो सेकेंड मैट्रिक्स की रो है वो आपस में सेम होनी चाहिए। और फिर आंसर आता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है मल्टीप्लाई बाय द कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। दैट इज यहाँ पर भी आपने देखा 2 क्रॉस 3 वाला था और ये 3 क्रॉस 2 था, तो 3 3 कट गया तो 2 क्रॉस 2 आपका रिजल्ट आ गया। नाउ वी आर गोइंग बैक। हम स्केलिंग में हम देख रहे थे, स्केलिंग में हमने यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर हमें गिवन था 2 क्रॉस 3, यू कैन सी हियर, और हमारे को एक कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपका पहला मैट्रिक्स है, ये आपका स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इस वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये मैंने डमी रो यहाँ पर ऐड की हुई है, दिस इज योर डमी रो 1 1 1, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में हमने लिखा है, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस। कर लोगे? इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे मुझे क्या आ रहा है? 0। हाँ मैम कर लेंगे। ठीक है, इट इज वेरी इजी क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके तो फटाफट 0 ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है।
Yes, what is A dash, B dash, C dash and D dash? What are the new coordinates? देखो 2 into 0, 0 into 0, 0 into 0, तो ये तो पहला तो 0 ही आ रहा है आपका। 2 into 3, 6, 0, 0, 0। ये 6 है, ठीक है। ना यहाँ पे 0 into 0, 3 into 3, 9, यहाँ लाइन आ जाएगा एंड 0, 0, 0। क्या आ रहा है आंसर? न्यू कोऑर्डिनेट्स देखो आ रहे हैं ना, 0,9, 6,9, 6,0 एंड 0,0। तो ये आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्लास? कोई कर रहा है साथ में? 0660 क्या फर्स्ट रोज का 0660। पूरा बताओ बेटा। मैम एक सेकंड। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पंकज, ऋतिक, मकर, मैम कर रहा है। अमन और सौरभ, आपको क्या हुआ है? 51 रोल नंबर। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास। किसी भी क्लास में यू आर नॉट इंटरेक्टिंग। What happened to you? Are you attending only the classes just for attendance? चलो इसको मुझे सॉल्व करके बताना जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं कंपोजिट मैट्रिक्स एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, तो फटाफट एक बार कंपोजिट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो लेट मी गो डाउन। यहाँ पे देखो, हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। हाँ 091। 09। हम एक सेकंड लिख के बता रहा हूँ मैम, रोज में बता रहा हूँ। फर्स्ट रो का 0660। हाँ सेकंड रो 9900। यस, तो आप इसको अगर बोलोगे तो इट इज 09, 69, 60 एंड 00। ठीक है, तो आपके वैल्यूज ठीक है शुभम। तो दिस इज द ओके सॉल्यूशन, मैम। ठीक है। तो नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होती है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन? नाउ जस्ट लुक एट हियर। देखो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन वी आर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस, मतलब हमने अभी मैंने डायग्राम शो किया था, उसमें हमने क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग द ट्रांसलेशन, देन वी वर डूइंग स्केलिंग एंड देन वी आर डूइंग द रीट्रांसलेशन कर रहे थे। सो द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल वन, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो व्हाट इज कंपोजिशन? आपको खुद को पता है कंपोजिशन क्या होता है, एक मिक्सचर। तो एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम एक सीक्वेंस पे परफॉर्म करते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? कंपोजिट मैट्रिक्स। एंड द होल प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। ठीक है, सो व्हाट इज कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम। तो ये पूछा जाता है। तो a number of transformation or sequence of transformation can be combined into a single one। ठीक है, उसको हम बोलते हैं composite matrix या composite transformation। Suppose we want to perform rotation about an arbitrary point। मैंने आपको बताया था कि हम rotation करते हैं, rotation मैंने आपको सबको बताया है। बट अगर हम rotation about an arbitrary point करते हैं तो वो क्या होता है? What is rotation about an arbitrary point? Yes,
रोटेशन बताया था, अगर हमें रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्री पॉइंट करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वी ब्रिंग द पॉइंट टू अ ओरिजिन, दैट मीन्स हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम रोटेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल मूव द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द ट्रांसलेशन, then we will do the rotation, and then we will do the reverse translation. This thing we have done. We have done the rotation about an arbitrary point. ये हमने किया था ना थर्सडे को, याद है क्लास? So the Yes, ma'am. अब यहाँ पर ये एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पहले ट्रांसलेशन कर रहे हो, फिर रोटेशन कर रहे हो, फिर रिवर्स ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो ऑर्डर है, ऑर्डर शुड रिमेन द सेम, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने पहले रोटेशन कर दिया, फिर आपने ट्रांसलेशन किया, फिर आपने रिवर्स ट्रांसलेशन किया, तो उस केस में आंसर गलत हो जाएगा। The order of the sequence should remain the same, and if a matrix is represented in column form, then the composite matrix is performed by multiplying the matrix in the order from right to left, and the output ये तो बेकार है। तुम बस इतना देखो composite matrix क्या होता है कि you are performing the transformation in a sequence of transformations. For example, आप rotation about an arbitrary point का example दे सकते हो, जिसमें आपने ट्रांसलेशन किया, देन आपने रोटेशन किया, एंड देन यू आर डूइंग द रिवर्स ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कंपोजिट। अच्छा, और भी है कि आप कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हो, मतलब कि आप सेम अगर कर रहे हो, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, फिर उसको फिर से ट्रांसलेट कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, दोनों मैट्रिक्स का कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पर there are some examples being given to you, so let's try these examples. अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले इस फिगर को देखो, this is the original object. Now what we have done, we have moved this object to the origin पे ले आए। Can you all see that? This is a figure A and this is figure B, and then what we were doing now, we have done the enlargement. हमने क्या किया, scaling। ये आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, अब इसको मैंने स्केल किया ओरिजिन पे, एंड देन आई ब्रिंग इट बैक टू द प्रीवियस पोजीशन, जहां पर ये पहले था वहां पर हम इसको दोबारा ले आए। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब एक चीज का ध्यान रखो कि दो तरीके से हर जगह पे मैट्रिक्स को लिखा गया है, वन इज कॉल्ड रो मेथड, वन इज कॉल्ड कॉलम मेथड। ठीक है, तो हमने ये वाला तरीका पढ़ा है, तो ये आप याद रखना। SX SY आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और 001 ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर देखा था। ये देखो, ये आपके पास दो ट्रांसलेशन है कि दिस इज योर वन ट्रांसलेशन, T1 T2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट 1 को किया, एंड पॉइंट 2 को आपने फिर से किया। सो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास 4 ट्रांसलेशन वेक्टर्स है, T1 T2 T3 T4, एंड दे आर 2 ट्रांसलेशन P1 और P2, आपने उसको पहले P1 पे मूव किया किसी पॉइंट को, फिर उसको P2 पे मूव कर दिया, तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, यू कैन डू द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, T1 plus T2 and T3 plus T4. So this you can do. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यू नीड टू डू T1 plus T3 और यहाँ पे T2 plus T4, बिकॉज ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो T1 और T3 है, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में T2 और T4 है, तो यहाँ पर आना चाहिए T1 plus T3 और T2 plus T4। जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उस पे। मैम पॉइंट चेंज कर लेते हैं ना, x1 y1 ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। हाँ, पर यहाँ पर ना ट्रांसलेशन वेक्टर्स को t की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे tx1 ty1 ऐसे ले सकते हो, tx1 ty1 tx2 ty2 ऐसे ले लो, तो x1 x2 ऐड हो जाएगा और y1 और y2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, y1 plus y2। हाँ, और रोटेशन भी एडिटिव होता है, ट्रांसलेशन भी एडिटिव होता है, मतलब कि आप रोटेशन वाले मैट्रिक्स को भी